ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا. میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا. 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا. اسباب کے بغیر چلا. میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا. کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو. خوشخبری ہو کیا؟ کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے. کیوں پریشان ہے تو؟ کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روضہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے. میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں. میں خضر ہوں. میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں، تو پڑھ یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ. یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ. اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ. اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ. الطف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ. الطف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ. الطف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیر. فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ. اب اس کا ترجمہ ہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے. مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے. اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما. اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما. پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. اچھا آپ سنیں، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا. ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں اور خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. ان کا ایک سفر ہے، روحانی سفر. اور وہ سفر کیسے ہوا؟ ایک ایسا چشمہ جس کا ہر گھونٹ انسان کو کبھی نہیں مرنے دیتا، جس کو دنیا آب حیات کہتی ہے. زمین میں موجود وہ پراسرار جگہ جہاں آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی. خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے. صدیوں پرانے راز، انکشافات، اور حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ایسے انوکھے عنوان پہ آپ سے گفتگو ہوگی. کچھ معلومات ہم بیٹھ کے سیکھنے سکھائیں گے، میں بھی سیکھنے والا ہوں، کہ جو صدیوں پہ محیط ہے اس کی آج کے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا. ذہن نشین رکھیں کہ اس ساری گفتگو کو آپ توجہ سے سنیں گے اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، شیئر ضرور کیجیے. ایک میں روایت بیان کروں گا، بہت طاقتور روایت ہے اور اس کا بہت طاقتور حوالہ ہے. یہ روایت ہے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے،
जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, ज़ुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदों में से एक सालेह बंदे थे, वो अल्लाह के एक अजीम मर्तबे पर फाइज थे। हमारे बादशाह पर अल्लाह की कितनी रहमत है। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ मशरिक से मगरिब तक हुकूमत दी है, बल्कि उन्हें रूहानियत में ऐसी फजीलत दी कि ज़ियाफील नामे एक फरिश्ता उनका दोस्त बना दिया, जो उनसे मुलाकात के लिए आता रहता था। एक दिन जब दोनों बातें कर रहे थे तो ज़ुल्करनैन ने ज़ियाफील से पूछा, ज़ियाफील, आसमानों में फरिश्ते अल्लाह की हम्द कैसे बयान करते हैं? धुलकरनैन, आसमानों में ऐसे फरिश्ते हैं जो खड़े हैं और कभी नहीं बैठेंगे, और फरिश्ते हैं जो सजदे में हैं और कभी अपना सर नहीं उठाएंगे। ऐसे भी हैं जो रुकू में हैं और उन्होंने कभी अपनी नजरें नहीं उठाएं। कुछ फरिश्ते हैं जो उसे हर वक्त कहते रहते हैं, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस रब्बिल मलाइकति वर्रूह रब्बि मा अबदनाका हक के इबादतिक। पाक है वह बादशाह, पाकीज़ा, फरिश्तों, रूह का रब, हमने तेरी इबादत वैसी नहीं की जैसे तेरा हक था। ये सुनकर ज़ुल्करनैन रो पड़े। मैं अर्ज किया, ए ज़ियाफील, मैं चाहता हूँ मैं इतनी देर जिंदा रहूँ कि अल्लाह की सही इबादत और इताअत कर सकूँ। ज़ियाफील ने कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं? ज़ुल्करनैन ने कहा, हाँ। तो फरिश्ते ज़ियाफील ने अर्ज किया, ज़मीन में एक चश्मा है जिसे आइनुल हयात कहते हैं, यानी आब हयात। ऐन अरबी में चश्मे को कहते हैं। जो भी इसमें से एक घूंट पी लेता है वो कभी नहीं। हैरत की बात है, ज़ियाफील ने क्या हैरत अंगेज राज बताया। आए इस राज को आगे जानते हैं। आपको पता है ये चश्मा कहाँ है? ज़ियाफील ने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह के इल्म में है, लेकिन आसमान वालों के दरमियान ये बात मशहूर है, ज़मीन पर एक ऐसी तारीक जगह है जिसमें ना कोई इंसान गया है ना जिन। हमें गुमान है वो चश्मा उसी तारीक मकाम पर है। ये सुनकर ज़ुल्करनैन ने ज़मीन के उलमा, अहले किताब, आसार नबूवत के जानने वाले, साहिब इल्म, फ़कीह, मुज्तहिद और बड़े बड़े उलमा को जमा किया। उनसे पूछा, क्या आपने कभी किताबुल्लाह या अंबिया की अहदीस में, विरासत में, किसी इल्म की दुनिया में किसी ऐसे चश्मे का जिक्र पाया? उन्होंने कहा, नहीं। तब एक आलिम ने कहा, ए बादशाह, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो ज़ुल्करनैन ने फरिश्ता ज़ियाफील की वो सारी बात बता दी। उस आलिम ने कहा, मैंने हजरत आदम की वासियत में पढ़ा है कि ऐसी जगह मौजूद है। यह जगह सूरज के मशरकी किनारे की तरफ है। फिर ज़ुल्करनैन ने लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को जमा किया और सूरज के मशरकी किनारे की तरफ सफ़र शुरू किया। 12 साल तक मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि वो तारीकी के किनारे पर पहुंचा। वो तारीकी रात की तरह नहीं थी, बल्कि धुएं की मानद उबलती हुई थी। ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया और पूछा, मैं इस तारीखी में दाखिल होना चाहता हूँ। उन बड़ी हस्तियों ने कहा, आपसे पहले कई ताकतवर लोग आए, लेकिन उनमें से कोई भी इस वादी में दाखिल नहीं हुआ। हमें डर है कि कोई मुश्किल में न पड़ जाए। मैं जरूर इस वादी में दाखिल हूंगा, बस मुझे बताओ कि रात को कौन सा जानवर जागता है। कहा, मादा घोड़ी, वो मादा घोड़ी जो अभी कुंवारी हो। उन्होंने 6000 ऐसी घोड़ियां मंगवाई और 6000 अक्लमंद सिपाही चुने। हर एक को घोड़ी दी। लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और खिज़र अलैहिस्सलाम को 2000 फौजों का सरदार बनाया। खुद 4000 के साथ पीछे रहे। बाकी लोगों ने कहा, हम 12 साल तक ना लौटे तो तुम वापस चले जाना। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बादशाह, इस अंधेरे में जहां हम जा रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आएगा, हम क्या करें? ज़ुल्करनैन ने एक सुर्ख मंका यानी पत्थर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया। फरमाया, जब अंधेरा महसूस करे ज़मीन पर फेंके, अगर वो चीखे तो समझ जाना वापसी का वक्त आ गया है। खिज़र आगे बढ़े, रवाना हुए। सफ़र शुरू हुआ। चलते चलते एक वादी में पहुंचे। महसूस किया कि चश्मा वही हो सकता है। उन्होंने मंका फेंका, वो चश्मे के किनारे गिरा। खिज़र ने उस चश्मे से गुस्ल किया, वुज़ू किया, पानी पिया। ये पानी दूध जितना सफेद और शहद जितना मीठा है। मैंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया। फिर वो वापस अपने लश्कर में आ गए। इधर ज़ुल्करनैन इस वादी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए और 40 दिन तारीकी में चलने के बाद एक रोशनी में पहुंचे। वहां सब्ज जमीन, एक महल था जिसकी दीवारें 1 फरसख यानी बहुत ऊंची बुलंद थी। महल में कोई दरवाजा नहीं था। ज़ुल्करनैन आगे इसमें दाखिल हुए। महल में एक स्याह परिंदा नजर आया जो लोहे की सलाख से बंधा था। परिंदे ने कहा, आप वही धुलकरनैन हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा? फिर उसने सवालात किए, क्या जमीन पर चूना और ईंट का काम बहुत बढ़ गया? ज़ुल्करनैन ने फरमाया, हाँ। परिंदे ने सिसकियां लेनी शुरू कर दी और सिसकियां भरते भरते फिर उसने पूछा, क्या झूठी गवाहियों में इजाफा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। क्या मौसीकी आम हो गई है? ये बहुत आम हो गया है।
क्या लोगों ने कलमा पढ़ना छोड़ दिया है? तो ज़ुल्करनैन ने फरमाया नहीं। पूछा नमाज? फरमाया नहीं। पूछा जनाबत यानी नापाकी का गुस्ल करना छोड़ दिया? फरमाया नहीं। परिंदे ने कहा अब मैं इत्मीनान में हूँ, वापस अपनी हालत में आ गया। फिर उसने ज़ुल्करनैन को महल की सीढ़ी चढ़ने को कहा। ज़ुल्करनैन ऊपर पहुंचे तो वहां एक नौजवान खूबसूरत खड़ा था, जो दरअसल साहिब सौर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। वो आसमान की तरफ मुंह किए खड़े थे और कह रहे थे क़यामत करीब आ चुकी है, मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ, कब मुझे अल्लाह सूर फूंकने का हुक्म अता फरमाते हैं। फिर उन्होंने ज़ुल्करनैन को एक पत्थर दिया, फरमाया अगर ये पत्थर सैर हो जाए यानी भर जाए तो तुम भी हो जाओ, अगर ये भूखा हो जाए तुम भी हो जाओ। ज़ुल्करनैन ने वो पत्थर अपने बड़ों को दिखाया। उन्होंने 1000 पत्थर तोले मगर वो पत्थर भारी रहा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मिट्टी इस पर रखी तो वो तवाज़ुन में आया। बड़ी हस्तियां, बड़े उलमा सजदे में गिर गए। खिज़र ने फरमाया अल्लाह की तरफ से आपको सबक है, इंसान कभी सैर नहीं होगा जब तक मिट्टी में ना पड़ जाए यानी मौत ना आ जाए। ज़ुल्करनैन ने फरमाया आपने सच कहा, मैं अब और मजीद कुछ हासिल नहीं करना चाहता। वापस लौट गए। रास्ते में वादी मिली। लोगों ने पूछा ये क्या? ज़ुल्करनैन ने फरमाया यह वो चीज़ है जो लेगा पछताएगा, जो छोड़ेगा पछताएगा। लोगों ने कुछ ले लिया, कुछ ने छोड़ दिया। बाहर आकर पता चला वाकई कीमती पत्थर थे और सब पछताए। फिर ज़ुल्करनैन दोमत जंदल एक जगह का नाम है, वापस आ गए, वहाँ क़याम किया, वहीं वफ़ात पा गए। हज़रत अबू जाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ज़ुल्करनैन पर रहम फरमा, अगर उसे ज़बरजत की खबर पहले होती तो वो लोगों में बांट देते, मगर जब उन्हें वो मिला तो वो दुनिया से बेरगबती कर चुके थे और बेरगबत हो चुके थे, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी। इस सारे वाक़े का हवाला किताबुल आज़मा शेख अस्फ़हानी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1461, लिंक आपके पास मौजूद है। कायनात राज़ों में है, राज़ों में रहेगी, अजायबात में है, तिलिस्मात में है और तिलिस्मात में रहेगी। आए कायनात के राज़ों को जानने के बाद ये देखें इन राज़ों का सिलसिला कहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह अल्लाह राज़ों में है, राज रहेगा और वो खुशकिस्मत होगा जो राज़ों भरे रब को बगैर दलील के मानेगा और उसकी कायनात की तिलिस्मात की दुनिया को बगैर दलील के मानेगा। आए इन रूहानी दुनिया को मानते हुए अपना सफ़र जारी रखें और अल्लाह की तरफ हमारा रुजू बढ़ाएं। इंशाअल्लाह हमारे कदम बढ़ते चले जाएंगे। किसकी तरफ? उस रब की तरफ जिसने ये कायनात के पुरस्कार और अजायबात बनाए। कुछ अमल हैं अल्लाह के वलियों के, उनमें से एक अमल जो बेशुमार लोगों के तजर्बात में आया और बेशुमार अल्लाह के बंदों ने उसको अपने तजर्बात का हिस्सा बनाया। क्यों ना उसको बयान कर दें। एक अमल देता हूँ मैं आपको और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और उनकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बहुत मुबारक अमल है, मुख्तसर अमल है और निहायत ही ताकतवर अमल है। अवल आखिर दरूद पाक के साथ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अगर कोई शख्स इसको सिर्फ 40 बार तन्हाई में बैठकर तवज्जो से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नियत करके ये पढ़ेगा, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने उस पर राज खुलेंगे और हज़रत खिज़र से उसकी मुलाकात होगी। अब पढ़ने में है, जो जितनी तवज्जो से लगन से डूब के पढ़ेगा उतनी जल्दी होगी। अगर ना भी हो अमल ना छोड़ें, समझ लें हमारे लेने में कमी है, उसकी अता और देने में कमी नहीं। ये आपको बहुत ताकतवर अमल, मुस्तनद अमल मैंने दिया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने आजमाया, ज़रूर कीजिए। जज़ाक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।